Yes. So when we are learning computer system, we have to understand what is the term computer system and what are the things which consist of making a computer system. So in the computer system, we have two words. One is computer and another is system. See, computer, we can say it can be in the form of laptop. It can be in the form of PC, that is personal computer. It can be in the form of tab. And also we can say our mobile phones are also one of the type of computer system. So computer system के बारे में अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट से पढ़ा है उनकी यही समझ होती है कि they are saying कि system, that is laptop. No, laptop is just a type of computer system. Okay, so laptop का अपना एक specific feature है, that is it is portable. We can take the laptop from one place to another. Yes or no? So that is the feature Yes. of laptop. When we are learning PC, that is personal computer, that is known as our traditional computer. ये हमारा traditional computer है, and we can see in our lab also we have one CPU, we have one monitor, we have one keyboard, we have one mouse, we have other devices connected to it. So this is the traditional thing. Now we all know because it is of huge size. It is of huge size. So that is why we cannot use it to transport it from one place to another. So it is not portable. Okay, so that is why we have come up with the laptop as a solution. Now tab, so tab is again a very small as compared to laptop. It is a small in size. It is most easily portable. It is a small in size because of, now again when we are talking about mobile phone, so nowadays all the work we can do from the mobile phone. Lots of companies, lots of users are running their business by the cell phone. So they all are what? They all are the types of computer system. Okay. And now when we are talking about system, so system means it is a collection of units. It can be any different types of unit. Okay. कई सारे छोटे छोटे चीज को कंबाइन करके जब हम एक कॉमन चीज बनाएंगे, that is known as a system. So computer system is this thing. Now another important point to be learned in the computer system is about the, it also consists of two important parts. One is known as hardware and another is known as your software. Okay, इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी नहीं होता है. Now, when we are talking about computer hardware, so what is a hardware? Hardware, we can say it is a tangible item. It is a tangible item. So what is the meaning of tangible item? It can physically exist in our environment. जैसे मैं अपने लैपटॉप को छू पा रही हूँ, मैं अपने पेन टैब को छू पा रही हूँ, आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन को छू पा रहे हो, आप अपने सेल फोन को छू पा रहे हो. So that is a tangible item. Now when we are talking about software, so software कैसे होगा? That is intangible. ऐसा एलिमेंट जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, बट स्टिल वी कैन यूज इट. जैसे मैं यहाँ पे पेन टैब यूज कर रही हूँ एज एन एग्जाम्पल. ओके, तो पेन टैब जो मैंने आपको दिखाया था, सो पेन टैब वन हैज अ ब्लैक स्क्रीन, इसमें एक टच पैड है, इसमें एक पेन, आई हैव द पेन. But when I am writing on this touchpad, so I have installed one of the software which is compatible with this pen tab, and that is why I can operate it. Is it correct? Yes or no? Yes. So that is why we can say that both are the collection of the things that we are learning right now. Okay, so you cannot say that a computer system is just a hardware or a computer system is a software. It consists of both the parts. So that is why when I will combine this word hardware and software, then it will combine make a system, and that system is known as computer system. So that is why in the 11th class they have introduced what is a hardware element and another is what is the software element. So software elements means what are the basic functions, how are the basics functions are organizing into our computer system. And when we are talking about hardware, so hardware represent फिजिकल स्ट्रक्चर की आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है एक्चुअली उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, that we are going to learn. And that is about the functional hardware part of the PC. कि हमारे पीसी में जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो इंटरनल पार्ट्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपको चैप्टर 3 में पढ़ना है. तो क्या आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज अबाउट द चैप्टर 3, व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर 3? हाँ, समझ में आया. Okay. Now I will share another screen and then we will start.
Can you see the another slide? Yes. Okay. So this is the slide. Now let us quickly read this slide or see. So yes, this is the fundamental. Okay, what is the topic that we are going to learn? The topic we are going to learn is the functional hardware of PC. Okay, so what is the full form of PC? Personal computer. Personal computer. Now this can be a small question in your examination in the fill in the blanks. Okay, PC means for your personal computer. Now introduction to CPU. What is the full form of CPU? Central processing unit. Central processing unit. A very important question can be asked from central processing unit. Like a 3 marks question can be, what is CPU? What are the role of CPU? Okay. Now see, this is the full form, personal computer and CPU, that is central processing unit. Okay. So this is a very general slide, resources required for the topic. I'm skipping this part. Now, what is the learning objective? So this is very important to understand what you have learned from this chapter. So we are going to learn about the CPU, and then we are going to learn about the properties of various hardware which are connected to the CPU. Now, before starting with the CPU, first I will show you this figure. Now, this figure, what does it? This figure shows, see, this is the physical part of the computer system. Can I say the physical part is known as hardware? Yes or no? Yes. And when I will ask you, what is the name of logical part? Logical part is known as software. Logical Okay. So means, the logical means that cannot be seen. ना logic हमारे दिमाग में है ना? Like you are solving a theorem of a mathematics. तो आपको टीचर ने थ्योरम बता दिया कि sin theta divided by cos theta equals to tan theta. तो that you know कि this is a formula. अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करके you can derive a another formula. Yes or no? So this is the base, this is the base, this is the fundamental. We apply this fundamental theorem into the another theorem 2 to prove another theorem 2. So similarly, we can say that when we have learned computer system, so computer system is about hardware. So this is the short form of hardware, and it also consists of software. So when we are learning physical part, so physical part is known as hardware, and again the software part is known as, logical part is known as software. As for example, जो हमने कल बात की थी, your operating system. We all know in our cell phone we have Android as an operating system. अभी मैं अपने लैपटॉप पे हूँ, आप अपने लैपटॉप में हो. In both the laptop, which operating system is there? Android. Windows operating system. So Windows and Android is known as operating system, and these are the examples of OS, and ultimately this is a software. Okay, so now see, is physical part ko dekho. Now we all know this is the monitor. Yes or no? This is the monitor. Yes. Now this is known as, so this is the printer. Okay, this is the printer. ये एक मॉडम है. मॉडम मैं आपको बाद में बताऊंगी व्हाट इज मॉडम. दिस इज नोन एज पेन ड्राइव. ओके, मेरा माउस जहां जहां पे जा रहा है, प्लीज सी दिस. दिस इज नोन एज फ्लैश मेमोरी कार्ड. दिस इज नोन एज माउस. करंटली आई हैव आल्सो माउस. सीडी डीवीडी अगर आपने देखा होगा. दिस इज नोन एज यूएसबी पोर्ट. ये जो है इसको हम यूएसबी पोर्ट बोलते हैं, जहां पे हम इस यूएसबी को, पेन ड्राइव को लगाते हैं, है ना? यस और नो? पेन ड्राइव लगाया है ना सिस्टम में आपने? हाँ हाँ लगाया. हाँ, तो ये हमारा ये. अब मुझे दूसरा क्वेश्चन बता दो. इफ दिस इज आई एम टेलिंग अ मॉनिटर, तो मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस. यस और नो? एंड कल हमने क्या पढ़ा है? इस स्लाइड से पहले मैं यहाँ पे आपको ले जाऊंगी. सो कल हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंट टर्म वी हैव लर्न. सो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ. दिस इज नोन एज लॉजिकल and this is known as physical component. This is physical component and this is known as your logical component. Then when today we have learned computer system, तो computer system में दो तीन important बातें हैं. One is IPO cycle. So when we are telling IPO cycle, what is the full form of IPO cycle? Input process आउटपुट है ना. जैसे अभी मैं यहाँ पे बना देती हूँ. सो लेट अस सपोज दिस इज माय कैलकुलेटर. कैलकुलेटर में इस तरीके से 1 2 3 4 होता है. यहाँ पे आपके
इस तरीके से दे आर गिविंग द नंबर्स। नाउ जब मैं यहाँ पे लिखूंगी 1+2, वी नो कि जब मैं इक्वल्स टू प्रेस करूंगी वी विल गेट द ऑप्शन 3। ओके, तो इनपुट मीन्स 1 2 एंड द सिंबल प्लस, दिस इज द इनपुट। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इनपुट हो गया। प्रोसेसिंग का ये मीनिंग है कि मैंने यहाँ पे जो प्लस ऑपरेशन किया दैट इज द एडिशन, सो दिस इज द एडिशन। एंड फाइनली जब आपका आउटपुट क्या हो जाएगा 3, दैट इज 1+3। तो एवरी कंप्यूटर सिस्टम इज वर्किंग ऑन आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। सो दैट इज वाई यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आता है। सो इन आवर कंप्यूटर सिस्टम वी हैव द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस क्या करेगा, जो इनपुट एक्सेप्ट करेगा। ओके, जो इनपुट एक्सेप्ट करेगा। And when we are talking about output, so output is a device which will give you the output. Okay, और जो हमारी प्रोसेसिंग होती है ये आपके सीपीयू में होता है, और एक्चुअली यू आर गोइंग टू लर्न सीपीयू। इतनी बातें समझ में आई? हाँ। तो इसीलिए ये फिगर में अब मुझे एक एक करके यहाँ पे बताओ कि ये जो मॉनिटर है, दिस मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीन। ओके, जैसे हमारे टीवी का स्क्रीन होता है, can I say this screen or monitor is an example of output device? Yes or no? हाँ। Now what is printer? Printer is input or output device? Say Printer is an input device. no, printer is again the output device. How? So you are going to the Xerox machine, आप उसको एक फाइल देते हो, है ना, और बोलते हो भैया मुझे ये प्रिंट करके दे दो, तो वो आपको एक हार्ड कॉपी देता है ना। हाँ। तो हार्ड कॉपी क्या हुआ, फिजिकल थिंग है जिसको आप टच कर सकते हो। तो ये इस डिवाइस से आपको मिला, दैट इज अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ओके, नाउ ये कुछ हमारे बेसिक हो गए आउटपुट। अब ये मेरा कीबोर्ड है। ओके, ये दिस इज माय कीबोर्ड। ना ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, बताओ? Input device. इट इज एन इनपुट डिवाइस। वाई? बिकॉज अभी हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, यू आर राइटिंग समथिंग टेक्स्ट टू मी ऑन द व्हाट्सएप, तो आप अपने मोबाइल फोन से टच पैड पे जाकर यू आर प्रेसिंग समथिंग, कुछ कीज प्रेस कर रहे हो ना। तो व्हेन वी आर परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शन, मतलब इनपुट क्या होगा, व्हेन वी आर टेलिंग इनपुट, इनपुट का मतलब है वी आर परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शन, और हम यहाँ से कुछ एक्शन इनपुट दे रहे हैं, कुछ हम इवेंट कर रहे हैं। आप जैसे की प्रेस करते हो, है ना, की प्रेस करना हो गया, कुछ टाइप करना हो गया। टच पैड है तो इधर से उधर जब हम लेफ्ट और राइट टच पैड यूज करते हैं, सो दिस ऑल आर द इनपुट। और आउटपुट का मतलब है जब आपको स्क्रीन पे कुछ दिखता है, तो कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, कीबोर्ड नाम से ही क्लियर है कि की से आप हम की प्रेस कर रहे हैं, एंड व्हेन वी आर प्रेसिंग सर्टेन की देन वी आर जनरेटिंग अ सिग्नल, तो दैट इज व्हाई इट इज इनपुट। नाउ सिमिलरली आपका माउस कैसा है, बताओ? इनपुट और आउटपुट? Input. अगेन दिस इज अ इनपुट। क्यों? क्योंकि माउस में आपके दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, और एक स्क्रॉलिंग होता है। तो जब आप लेफ्ट बटन, जैसे अभी मैं लेफ्ट बटन क्लिक कर रही हूँ तो देखो मेरा आगे वाला पेज चला आया। मैं राइट बटन क्लिक कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग दिस पॉपअप। तो मैं प्रेस कर रही हूँ ना, प्रेस कर रही हूँ मतलब मैं कुछ टास्क परफॉर्म कर रही हूँ। टास्क परफॉर्म करने का मतलब है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कि आई एम प्रोवाइडिंग सम इनपुट टू आवर डिवाइस। यस, सो दैट इज वाई माउस इज अ इनपुट डिवाइस। तो आपके बुक में मुझे पता नहीं है या नहीं, बट इन द 9th क्लास, करेंटली व्हेन आई एम टीचिंग 9th क्लास, सो दे हैव कंप्यूटर सिस्टम एज अ फर्स्ट चैप्टर। ओके, और उसमें उनको पहले ही सबसे पहले ये सिखाया जा रहा है कि दे नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस एंड व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि ये बेसिक चीजें अगर आपको नहीं समझेंगी तो आगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद चलो अब स्पीकर बता दो, स्पीकर क्या होगा? Output device. Yes, that is an output device. Why? Because we know कि स्पीकर के थ्रू हमें कुछ सुनाई दे रहा है, we are receiving a signal। जहां पे हम सिग्नल सेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट जब भी हम करेंगे दैट इज द इनपुट। ओके, एंड व्हेन वी आर रिसीविंग सम ऑफ द रिस्पॉन्स, तो दैट इज नोन एज योर आउटपुट। तो ये सिंपल सिंपल चीजें होती है समझने के लिए। माइक्रोफोन क्या होगा, बताओ? Output. दिस इज अगेन इनपुट। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का मतलब है माइक। माइक हम लोग क्यों लगाते हैं अपने पास? सो दैट कि जो मेरी वॉइस की क्लैरिटी है वो अच्छी हो जाए, है ना।
तो इट इज रिसीविंग व्हाट वी आर सेइंग, तो माइक इज अ इनपुट डिवाइस। तो पहले ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या पढ़ना है अबाउट द सीपीयू, तो ये जो डब्बा दिख रहा है डब्बा इज द सीपीयू। ओके, नाउ सी इस डिवाइस में देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न। सबसे पहले ये जो पोर्ट है ना, ये वाला पोर्ट, इस पोर्ट को उन्होंने बोला है फ्लैश कार्ड रीडर। ओके, सो यहाँ पे हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं, यहाँ पे हम डीवीडी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, एंड कंप्लीटली इसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट विच इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू। तो आपको इसी सीपीयू का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है इस चैप्टर में। इतनी बातें समझ में आ गई? Yes. Now, what is flash memory card? So we know कि in the cell phone we have the SIM card. एक छोटी सी चिप होती है और इस चिप में हमारे सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। Similarly, in our computer system we have lots of chips which is used to store some of the information. Okay, और जो आपका पेन ड्राइव है, दिस इज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन इन द 9th क्लास, आपसे पूछता है जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? द ऑल्टरनेटिव ऑफ पेन ड्राइव इज फ्लैश ड्राइव। इसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन इन 9th क्लास रिसेंटली। ओके, सो क्या आपको ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम समझ में आया? हाँ. अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या आपको ये समझ में आया व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Yes. चलो, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ओके, इस स्लाइड में बेसिकली जो अभी हमने सीपीयू देखा है, सीपीयू का हमने कवर निकाल दिया है। ठीक है, जैसे आप किसी भी हार्डवेयर शॉप में जाओगे तो आपको इस तरीके का दिख जाएगा, तो वो लोग कवर निकाल दिए हैं। और अब आप यहाँ पे समझिए, सो एक्चुअली हमारा जो लैपटॉप है, लैपटॉप को भी कभी आप ओपन करोगे तो दिस आर द थिंग्स इन द लैपटॉप ऑल्सो, बट इट इज इन द स्मॉल साइज। और पीसी में आपको ये प्रॉपर यहाँ पे दिखता है ना। तो सी एक इस तरीके का है, दिस इज नोन फॉर पावर सप्लाई। एज वी ऑल नो कि अभी अगर मुझे चार्जिंग कनेक्ट करना है तो मैं एक केबल लगाऊंगी, तो केबल लगाऊंगी मतलब कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में बैटरी है, यस और नो, जो कि चार्ज हो रहा है और जिसके थ्रू हम पावर जनरेट करके अपने सिस्टम को चला रहे हैं, यस और नो। Yes. दैट इज वाई द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पावर सप्लाई। दूसरा पार्ट है यहाँ पे चिप। चिप का मतलब देखो ये स्मॉल इस तरीके का यहाँ पे चिप होता है, सो दिस इज अ चिप। ओके, चिप में कुछ भी डेटा हम स्टोर करेंगे। द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज फैन, ये है हमारा फैन। ओके, फैन, व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग फैन? फैन क्यों यूज करेंगे हम? फैन इज यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम फॉर कूलिंग पर्पस। जैसे अभी आप रूम में बैठो, आपके पीछे फैन चल रहा है ना, सो व्हेन वी फील हॉट वी यूज्ड टू यूज द फैन। सिमिलरली पता है ना कि आप अगर मोबाइल को बहुत देर तक चार्ज करोगे या लैपटॉप को बहुत देर तक चार्ज करोगे, वो हीट हो जाता है, यस और नो। जैसे अभी वी आर टेकिंग द क्लास, ओके, तो हमारे सिस्टम पे जब आप नीचे हाथ रखेंगे तो वो गर्म हो जाती है। तो ऑलरेडी वी रिक्वायर सम ऑफ द कूलिंग मैकेनिज्म इन आवर सिस्टम सो दैट कि उससे कुछ भी गर्मी की वजह से कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। आपको दिख रहा है कि अंदर कितने छोटे छोटे सर्किट्स बने हुए हैं। एंड इन आवर होम जितने हमारे पावर के केबल्स होते हैं, पता है ना कि कभी बिजली चली गई बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, या फैन नहीं चल रहा है, ट्यूबलाइट नहीं चल रही बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, तो दैट कैन बी हैपन इन द मशीन ऑल्सो, बिकॉज मशीन में भी कई सारे केबल्स लगे हैं, गर्म हो गया, कोई तार खराब हो गई, सो दैट इज वाई वी हैव द फैन फॉर द कूलिंग पर्पस। तो इसीलिए इसका नाम भी फैन रखा है, बिकॉज दैट रिसेंबल द सेम वर्किंग दैट वी आर यूजिंग द नॉर्मल फैन। चलो, नेक्स्ट वी हैव वीडियो कार्ड। नाउ अभी आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो बिकॉज आपके सिस्टम में एक वीडियो कार्ड होगा, यस और नो। इफ इन योर सिस्टम देर इज नो सपोर्ट ऑफ वीडियो, देन यू कैन नॉट सी द वीडियो ऑफ माइन और आई कैन नॉट सी यू, सो दैट इज द वीडियो कार्ड। अब उसके बाद है यहाँ पे मॉडर्न कार्ड। मॉडर्न कार्ड होगा या फिर यहाँ पे मॉडम होना चाहिए, मॉडम। So when we are attaching some of the different types of things, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इस तरीके से एक डब्बा बना है ना, तो ये सारे आपके चिप्स को यहाँ पे स्टोर करने के लिए यूज किया है। Similarly, we have the sound card. So what is a sound card? So you can listen me. इट मीन्स कि हमारे सिस्टम में इनबिल्ट साउंड कार्ड इंस्टॉल है। हम लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा साउंड ऑफ माय लैपटॉप इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या जब हम अपने सेलफोन को 4 से 5 साल यूज कर लेते हैं तो उसकी जो स्पीकर होती है वो खराब हो जाती है ना,
हाँ बिकॉज हमारी क्या आदत होती है, हम स्पीकर ऑन करके सुनते हैं, तो दैट इज वाई उसकी स्पीकर थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो वाई? बिकॉज ऑफ द साउंड कार्ड। सिमिलरली यू कैन सी दिस डब्बा इज अ सीडी एंड डीवीडी ड्राइव। तो पहले हम सीडी डीवीडी मूवीज की लाते थे, और अभी लाए अगर उसको मुझे चलाना है तो मुझे अपनी सीपी में लगानी पड़ेगी ना वो सीडी। जैसे अभी आप पेन ड्राइव लगाते हो, है ना, ब्लूटूथ डिवाइस लगाते हो अपने टीवी में, इन द स्मार्ट टीवी, कि आपने कोई मूवी डाउनलोड किया, मूवी को डाउनलोड करके हमारे टीवी के पीछे पोर्ट्स बने होते हैं, उस पोर्ट्स में जाके हम पेन ड्राइव लगा देते हैं। तो नाउ डेज वी आर नॉट यूजिंग सीडी डीवीडी, सो दैट इज वाई अभी जो मेरे पास भी लैपटॉप है उसमें ये वाला पोर्ट अब वो देते ही नहीं है। वाई? बिकॉज सीडी डीवीडी करेंटली नो वन इज यूजिंग, सो वी आर यूजिंग नाउ डेज हार्ड डिस्क, है ना। हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में हम डेटा स्टोर करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मदरबोर्ड। सारे तरीके के इंफॉर्मेशन हमारे मदरबोर्ड में स्टोर होता है। दिस इज नोन एज पावर कॉर्ड, ओके, जहां से हम पावर सप्लाई देते हैं। दिस इज नोन एज रिबन। रिबन का यूज होता है कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, और ये एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट है। तो ये इसमें से काफी ऐसे पार्ट होते हैं जो किसी किसी सीपीयू में प्रेजेंट होगा, किसी किसी सीपीयू में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपको इन शॉर्ट इस डायग्राम में सब कुछ दिख रहा होगा इन दिस सीपीयू, कि these are the parts which are present in the all the CPU, okay? और इसी पार्ट को आपको पढ़ना है और समझना है। In the examination they can ask you why we are using chip in the CPU, why we are using fan in the CPU, what is the role of motherboard in the CPU, and that is your this chapter. तो क्या आपको वर्ड समझ में आ रहे हैं कृपा? कि इस तरीके के अगर आपको एग्जाम में अगर वर्ड्स आएगा, एटलीस्ट डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट इट, because yes this is known as the internal structure of CPU. ये क्या है? internal structure of CPU है। और ये क्या था? ये आपका था आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू, ना, ऐसा तो बाहर में दिखता है। अगर आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू है, अगर मैं किसी बच्चे को ये दिखा दूंगी तो उसको क्या कुछ भी समझ में आएगा? इवन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस सीपीयू बिकॉज आई एम नॉट डूइंग द हार्डवेयर थिंग्स। सो हम इसको इसके ऊपर एक और कैप लगा के वी आर सेलिंग दिस सीपीयू इन द मार्केट। इतनी बातें समझ में आई? yes Okay. Now let us start with the CPU. Now when we are learning about the CPU, so first we need to understand about the software. So software can be of two types. One is system software and another is the application software. Okay, software आपको पता है the logical component. Now the first is system software. System software का मतलब है कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए what is the basic software that is required. सबसे ज्यादा बेसिक फंडामेंटल सॉफ्टवेयर क्या होता है किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए? सो द बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नोन एज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका नाम ही होता है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम। अनदर सिस्टम सॉफ्टवेयर आई कैन से दे आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। So these are the examples of system software. Okay, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा, these are the examples of system software. फिर एक एक करके मैं आपको ये समझाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे है आपका application software. So application software, as the name itself say, a software which is meant for the specific application. जैसे आपके सेल फोन में एक कैमरा होगा, आपके सेल फोन में एक कैलकुलेटर होगा, है या नहीं है? है आपके सिस्टम में एक प्ले स्टोर होगा जहां से जाकर आप डिफरेंट एप्स को डाउनलोड कर रहे हो। आपके मोबाइल फोन में फेसबुक का आइकन होगा, इंस्टाग्राम का आइकन होगा, व्हाट्सएप का आइकन होगा। सो व्हाट आर दे? सो दे ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि कैमरा का काम है सिर्फ फोटो क्लिक करना या फिर वीडियो बनाना। कैमरा की मदद से वी कैन नॉट सेंड अ टेक्स्ट मैसेज टू एनीवन। सिमिलरली कैलकुलेटर जो बेसिक कैलकुलेशन कर सके। फेसबुक का काम है, फेसबुक पे आप रील्स बनाओ, फोटोज अपलोड करो, पिक्चर्स अपलोड करो। व्हाट्सएप पे यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। वी कैन सेंड अ टेक्स्ट मैसेज, वी कैन सेंड अ अटैचमेंट, वी कैन सेंड अ ऑडियो वीडियो,
तो हर एक एप्लीकेशन का, हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है. सो दैट इज व्हाई दे ऑल आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो ये दोनों नाम आपको समझ में आया. इफ आई कैन गिव अ सिंपल क्वेश्चन टू राइट अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो कैसे लिखना होगा? सबसे पहले आपको ये जो टर्म्स होते हैं, सी हाउ यू कैन गेट अ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. जो भी क्वेश्चन पूछेगा पहले उस टर्म को आप डिफाइन करोगे. द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द टर्म. सेकेंड स्टेप इज कि जो आपने टर्म लिखा उसको एक एग्जाम्पल देके आप उसको एक्सप्लेन कर दो. एग्जाम्पल के साथ आप उसको एक्सप्लेन कर दो. सो दैट इज हाउ यू विल गेट अ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. जैसे मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इतना एग्जाम्पल दे दिया. Similarly, I have given lots of example for system software, 4, 5, 6. So these are also known as social networking site. Social networking आपको पता है ना? YouTube, Insta, Facebook, LinkedIn. So they all are known as social networking site. And system software. So this is one example, and this is language translator is another example. तो ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर में अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, अब अभी जस्ट मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया इससे ऐसा. ना यहाँ पे भी ये सेम पिक्चर है. इसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड. ओके, व्हाई वी आर टेलिंग दिस एज अ मदरबोर्ड? इसलिए क्योंकि ये तो एक सिंपल बोर्ड है ना. एक बोर्ड आती है, जैसे आप सिम कभी देखोगे, सिम पे एक बोर्ड होती है और कुछ छोटे छोटे सिग्नल्स जैसे बने होते हैं. मदरबोर्ड इसलिए बोलते हैं, व्हाई? बिकॉज दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर पीसी. मेन पार्ट ऑफ आवर पीसी, और ये पीसी के अंदर होता है. सिमिलरली वी हैव वन डॉटर बोर्ड. What is the meaning of daughter board? A daughter board is a type of circuit board that plug in or it is attached to the motherboard or similar expansion card to extend its features and the service. कभी कभी ऐसा होता है कि मदरबोर्ड में सारे फीचर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो बाहर से हम कुछ और फीचर्स को एक्सटर्नली ऐड करते हैं. दैट इज नोन एज डॉटर board. A daughter board complements the existing functionality of the motherboard or an expansion card. Simply we can, इसको आपको याद क्या रखना है, इतना ज्यादा चीजें याद नहीं रखना है, बिकॉज कि आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो चीजों को समझो. जैसे मैंने बोला कि मदर है और यहाँ पे मदर है, उसकी एक डॉटर है, तो वी ऑल नो सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द मदर इज इनहेरिटेड इन हिज डॉटर. यस और नो? जो मदर है उसके कुछ फीचर्स को आप इनहेरिट करते हो ना. हाँ, तो सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है. ओके, तो कुछ मदरबोर्ड में यहाँ पे लिख दूंगी मदरबोर्ड है. मदरबोर्ड में मैंने जब कुछ और नए फंक्शनैलिटी ऐड किए, दैट इज नोन एज डॉटर बोर्ड. तो ये छोटे छोटे चीजें ही आप इस तरीके से याद रखो. ठीक है, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ. अब जो हमने अभी सीपीयू का एक ब्लॉक डायग्राम देखा, उस सीपीयू में कुछ हमने केबल्स देखे थे ना, केबल्स. दिस इज द केबल्स, ये वाला, ये वाला. So these are the cables. So these cables are known as data bus or address bus. ठीक है, इसको हम डेटा बस, एड्रेस बस भी बोल सकते हैं. और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप सीपीयू को जब हम यहाँ पे ये क्लास लगा रहे हैं, तो इस क्लास में आई एम सेंडिंग यू सम ऑफ द सिग्नल. तो वी नो कि जो मेरा वाटर है, वाटर को हम मेजर करते हैं लीटर में. ऑल द लिक्विड वी आर मेजरिंग इन द लीटर. वैसे ही जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को हम मेजर करते हैं किसमें? किलोज में. सिमिलरली अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा मोबाइल ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है या फिर कृपा का मोबाइल अच्छा वर्क कर रहा है, सो एनी सिस्टम वी आर गोइंग टू मेजर इट इनटू द सीपीयू स्पीड, कि आपके सिस्टम की स्पीड. कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि यार माय सिस्टम इज नॉट वर्किंग फाइन. इट मीन्स कि मेरे सिस्टम में कई सारे करप्टेड डेटा है या वायरस आ गया, somehow there is some problem, so that is why my system is not working properly. तो किसी भी सिस्टम के स्पीड को हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, सीपीयू स्पीड. हमारे सिस्टम में डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, और एक होता है हमारा सीरियल पोर्ट. सीरियल पोर्ट का क्या मीनिंग है? सीरियल का मतलब दिस इज द सीरियल ट्रांजेक्शन. एक एक करके हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. जैसे मूवी की टिकट लेनी है मुझे, तो मूवी की टिकट लेनी है, तो यहाँ पे अगर मेरा विंडो है, तो विंडो पे एक एक करके लोग आते जाएंगे और टिकट लेते जाएंगे. तो दिस इज द सीरियल कनेक्शन, की एक एक करके आपका डेटा और फाइल्स एग्जीक्यूट हो रहा है अपने कंप्यूटर सिस्टम में. ठीक है,
So this is the serial port. Now अभी तक जो हमने क्लास ली उस क्लास में हमने कुछ टर्म्स को सीखा है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड एंड डॉटर बोर्ड, और सीपीयू के बारे में समझा है। सीपीयू के बारे में एक चीज आपको और बता दूं, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, दैट इज कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। सो दिस इज नोन एज कंट्रोल यूनिट, और इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यस और नो, ये आपको पता है? ये पहले बार सुन रही हूँ। अरे ऐसे कैसे टीचर पूरा पढ़ा दी और ये नहीं बताई सीपीयू? दैट इज वेरी स्ट्रेंज इफ शी इज नॉट टीचिंग दीज थिंग्स, ओके? क्योंकि सीपीयू का मतलब ही है, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अभी देखो, अभी जैसे मैं क्लास लगा रही हूँ, मैंने पेन टैब लगाया है या फिर मैंने पेन ड्राइव लगाया है। अगर मैं पेन ड्राइव लगाऊंगी अपने सिस्टम में तो हमें दिखता है ना कि माई पेन ड्राइव हैज बीन इंसर्टेड विथ सर्टेन नेम, यस और नो? इसी वजह से अगर मैंने पेन ड्राइव लगाया और मुझे नहीं दिख रहा है तो हमें लगता है अरे यार कुछ प्रॉब्लम हो गया, चलो फिर से निकालो, फिर से इंसर्ट करो। इट मीन्स all the controlling operation, all the controlling operations की कौन, all the controlling actions are, all the controlling actions or the task are controlled by control unit, controlled, या फिर मैं इसको लिखूंगी, मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है आपको, मैनेज्ड बाय कंट्रोल यूनिट। ना क्लियर नहीं है बट स्टिल आई एम स्पीकिंग इट, है ना, कंट्रोल यूनिट। यू विल गेट दिस स्लाइड, डोंट वरी, ट्राई टू लिसन। मैं आपको ये एनोटेशन वाला फाइल ही दूंगी सो दैट यू आर सपोज टू रिवाइज इट। अर्थमेटिक लॉजिक का क्या मीनिंग है? सो इन द मैथमेटिक्स वी नो वी हैव प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन, यस और नो? जैसे मैंने किया 1 + 2 इट इज इक्वल्स टू 3, या मैं लिखूंगी क्या 1 इक्वल्स टू 1 के हैं? द आंसर विल बी यस। So these are some of the operations that we are going to perform in C++. इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग की चीजें। तो कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन या कोई भी लॉजिकल कैलकुलेशन व्हेन वी आर परफॉर्मिंग, सो दैट इज परफॉर्म्ड इन द ALU। सो सीपीयू इस दोनों पार्ट को कंसिस्ट करता है, दैट इज कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे अभी ये मैंने फाइल बनाया, ये फाइल बनाया मैंने C ड्राइव में स्टोर किया। नाउ बाय सम अनफेयर मींस अगर ये फाइल मेरी डिलीट हो गई तो कहाँ पे जाके स्टोर होगी? रिसाइकिल बिन में। फाइल्स डिलीट होती है तो रिसाइकिल बिन में इट इज गेटिंग टू स्टोरेज, फिर मैं वहां से अपने फाइल को रिकवर करती हूँ। तो इसलिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है ना, बैकअप एंड रिकवर, बैकअप एंड रिकवर, यस और नो? आपने सेलफोन में भी सुना होगा। जैसे हम बोलते हैं ट्रैश, ट्रैश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैश? ट्रैश इज जस्ट सिमिलर टू द रिसाइकिल बिन, है ना, कि एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जहां पे टेम्पोररी में जाकर हमारे फाइल्स स्टोर हो जाते हैं। सो दैट इज अ ट्रैश। सो दिस आर सम ऑफ द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स टू लर्न इन द सीपीयू। तो क्या इन शॉर्ट तुमको सीपीयू समझ में आया? ओके, नाउ दिस वाज द थिंग जो हमें एक्सप्लेन करना था। सो आई विल डू वन थिंग, ये हम एक टुडे इटसेल्फ, टुडे हम थोड़ा सा टाइम निकाल के हाफ एन आवर और समथिंग एल्स व्हेन यू आर गेटिंग टाइम वी विल लेट यू नो बाय द व्हाट्सएप। तो मैं आपको चाह रही थी कि आज का आज मैं आपको एक बार ये भी एक्सप्लेन कर दूं, okay, this slide. But before explaining this slide I am going from the first slide. So let me know first कि आपको आज के सेशन में पहले क्या डाउट है, because this session will be wind up soon, because ये सिर्फ 2 मिनट बाकी है in this Zoom call. चलो यहाँ पे देखो, ये वाली स्क्रीन दिख रही है ना? तो क्या यहाँ पे एक चीज मैं हाईलाइट कर रही हूँ विद द पेन, क्या ये समझ में आया व्हाट इज मदरबोर्ड एंड व्हाट इज सिस्टम बोर्ड लेआउट? ये लेआउट आपको समझ में आई? मदरबोर्ड वो वाला डायग्राम, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या ये समझ में आया कि सीपीयू क्या होता है और सीपीयू क्या क्या काम करेगा? कंट्रोल यूनिट एंड व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इन दिस स्लाइड जो आपको अभी बताया है मैंने, उसमें सिर्फ पॉइंटर्स लिखे हैं, उसमें नोट्स नहीं लिखा है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं उसके कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूं सो दैट यू कैन राइट 1 or 2 लाइंस इन योर एग्जामिनेशन, ओके? Yes. Because you are supposed to write the answers, no? हाँ,
उसके बाद देखो, हमने क्या पढ़ा, पीसी और मेमोरी के बारे में पढ़ा। तो पीसी इज अ पर्सनल कंप्यूटर। अब यहाँ पे आपका एक टर्म मेमोरी रह गया जो मैं पढ़ाऊंगी आपको। ओके, ये फिर ये वाला सेक्शन आपका कवर हो जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। ओके, दैट इज वाई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी ये पेंटियम चिप वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब हम ये मेमोरी पढ़ लेंगे ना, तो ये जो आपका है फ्लॉपी डिस्क, ये भी फ्लॉपी डिस्क मतलब पहले हम ये फ्लॉपी डिस्क यूज करते थे, नाउ वी आर नॉट यूजिंग इट। उसके बाद हम ये बस पढ़ेंगे, जैसे अभी आपने देखा था इन योर स्लाइड, दैट स्लाइड वी हैव जस्ट नाउ सीन कि डेटा बस और एड्रेस बस की बात की गई थी। यस, Yes. हाँ। और एक आपका यहाँ पे डीएमए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ये हाईलाइट में कर दे रही हूँ, डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, सो दिस आर फ्यू ऑफ द टॉपिक्स जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेदर देन गोइंग टू ऑल द थिंग्स टू लर्न, अभी आपका बिकॉज एग्जाम है तो हम एग्जाम परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे, पर समझ के पढ़ोगे देन ओनली यू आर सपोज टू राइट एनीथिंग इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो अभी हमने ओवरव्यू समझा है। आई होप आपको आज के ओवरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी ये काम करूंगी कि मैं आपको ये दोनों स्लाइड, ये जो मैंने एनोटेशन लिखा है ये सारी मैं आपको देती हूँ फाइल। whenever you are coming back from your tuition, just revise it properly and in the WhatsApp you just send me कि whatever is your doubt, और फिर मैं टाइम निकाल के आई विल जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दिस मेमोरी। तो अगर आपको आज टाइम मिलेगा तो आज बता दो, अदरवाइज टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द मेमोरी। ओके, ठीक है, अभी वाइंड अप करें क्लास। Yes. Okay, see Kripa, the one very important thing is कि when you are learning online, okay, जब आप online पढ़ते हो आपका 100% effort चाहिए and you should be revising the concept, then only this class will be helpful to you. तो जो भी आपका ट्यूशन है उस टाइम उसको भी टाइम दो, but still I want you to take out 1 hour time and revise it properly. Okay. Okay, चलो let's meet again in the next class. Okay. Okay, bye. So you will be sending this Yes, yes, I'm PPT. sending it right now. Okay. Okay.